So class 4, today I am going to show you one video for symmetry, then I will explain it to you. So mute yourself, everyone. Wait, we have already done it in class 3 also, in class 2 also, just for revising, so that I am showing you one video. This one is very easy chapter. Wait, let me do for class 4. क्लास 4 के लिए करती हूँ. ओके, मुझे एक बच्चा बता दीजिएगा कि आपको समझ आ रही है नहीं, आपको वीडियो दिख रही है नहीं. Symmetry and patterns. Symmetry can be observed all around us. We can see symmetry in man-made as well as natural things. We can see symmetry in monuments, insects, flowers, leaves, designs, etc. Symmetry is a regular balanced arrangement on both sides of a line. If we fold the figure along this line, the two halves exactly match with each other. The line which divides the figure into two halves is called the line of symmetry. Lines of symmetry can be vertical as well as horizontal. Some shapes have one line of symmetry. Some have two or more than two, and some have no line of symmetry. This design has only one line of symmetry. This shape has two lines of symmetry. This shape has three lines of symmetry. This shape has no line of symmetry. You can make your own symmetrical shapes. Take a sheet of paper and fold it into half. Again, fold it into half. Draw shapes as shown. Using a scissor, cut out these shapes. Open out the paper. A beautiful symmetrical design is ready. The line of symmetry divides the figure into two halves. The two parts are also called mirror halves. Take a mirror and put it in front of the letter B. We can see its reflection. Here the mirror works as a line of symmetry for B and its images. In the previous classes, we have read about patterns. In fact, in everyday life, we see many patterns. For example, patterns on bed sheets, patterns on grills in the balcony, patterns on the back of a zebra, etc. Patterns are formed by using blocks or shapes again and again. This pattern is formed by using a triangle and circle. The rule for this pattern is one triangle, one upside down triangle, and then one circle. Then this is repeated. This pattern is formed by using blue triangle and then green upside down triangle. The rule is one blue triangle and then one green upside down triangle. Then this is repeated. Pattern can also be made with letters or numbers. Here the rule is the first letter is the last letter of the previous term and the letters are in a sequence.
So the next two terms would be EF and FG. Now observe this pattern of numbers. Can you find the rule? The rule is multiplied by 2 plus 1. That is, to get next, multiply by 2 and add 1 to get this product. For example, to get 15, multiply 7 by 2 and get 14 and add 1 to it. So the next term of this pattern will be 31 multiplied by 2 plus 1, which is equal to 63. We can use letters and numbers together to make patterns. Observe this pattern. Here the rule is, the numbers as well as the letters are in a sequence. So the next two terms are 5E and 6F. अच्छा लगा? Which shapes are symmetrical? ये देखिए हमें पता लगाना है कि इन तीनों शेप्स में से कौन कौन से शेप्स सिमेट्रिकल हैं। तो पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि आखिर सिमेट्रिकल क्या होता है। इसके बिना तो हम पता लगा नहीं पाएंगे। तो वो शेप्स सिमेट्रिकल होते हैं जिनमें कि कम से कम एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जब हमारे पास किसी भी शेप में एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तब हम कह पाएंगे कि वो शेप सिमेट्रिकल है। तो अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या चीज़ है, इसे बिना समझे हम इस सवाल का जवाब तो नहीं दे पाएंगे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जिसे कि अगर हम किसी शेप पे बनाएं तो वो शेप जिन दो टुकड़ों में बट रहा है वो दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर हों। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी शेप को हम उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग मोड़ देते हैं तो हमारे दोनों टुकड़े एक दूसरे पे बिल्कुल ठीक बैठ जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसे समझने के लिए। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है कुछ इस तरह से। अब अगर इस सर्कल पे अगर मैं एक लाइन बना लूं कुछ यहाँ पर इस तरह से, तो हमारी ये लाइन इस सर्कल को दो टुकड़ों में बांट रही है, एक ये ऊपर वाला टुकड़ा और ये एक नीचे वाला टुकड़ा। अब अगर इस लाइन के अलोंग मैं किसी भी एक टुकड़े को मोड़ दूं और अगर मुड़ने के बाद एक टुकड़ा दूसरे पर बिल्कुल ठीक ठीक बैठ जाता है, अगर एक टुकड़ा दूसरे के बिल्कुल बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो अगर मैं यहाँ पर ये ऊपर वाला टुकड़ा ले लूँ, अगर मैं ये वाला टुकड़ा ले लूँ और अगर मैं इसे मोड़ूं अपने इस लाइन के अलोंग, तो ये मुड़ने के बाद आप इसे मन में सोच सकते हैं, या अगर आप चाहे तो एक कोई पेपर लेके एक सर्कल बना के और ऐसी एक लाइन बना के इसे मोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे मोड़ूंगी तो ये कुछ इस तरीके से आएगा मेरे इस नीचे वाले टुकड़े पे। यहाँ पर हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा गायब हो जाएगा क्योंकि ये तो मुड़ चुका है हमारी इस लाइन पे, और मुड़कर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमारा ये जो सर्कल था ये कुछ अब ऐसा सा दिखेगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो ऊपर वाला टुकड़ा है ये मुड़ने के बाद हमारे नीचे वाले टुकड़े पे पूरी तरह से नहीं बैठ रहा है, ये टुकड़ा इसके बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये लाइन इस सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अगर हम एक दूसरी लाइन ले लें, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसी लाइन ले लेती हूँ जो कि हमारे इस सर्कल के ठीक बीचों बीच यानी कि इसके सेंटर से गुजरती हो, तो अगर मैं इस सर्कल का कोई भी हिस्सा ले लूँ और इस लाइन के अलोंग मोड़ दूँ तो ये दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल ठीक बैठ जाने चाहिए। और हो सकता है कि आप इस चीज़ को विजुअलाइज ना कर पा रहे हों, और इसके लिए आप चाहे तो एक पेपर से एक सर्कल बना के ये ट्राई कर सकते हैं, या मेरे पास एक टूल भी है यहाँ पे जिसकी मदद से हमें थोड़ा थोड़ा तो ये समझ आएगा। तो अगर मैं अपनी इस लाइन को अपने इस येलो वाले लाइन पे पूरी ठीक तरह से बैठा दूँ कुछ यहाँ पर,
और अब अगर मैं कॉपी करना शुरू करूंगी अपने एक हिस्से को, तो ये किस तरीके से मुड़ेगा हमारे दूसरे हिस्से पे, ये आपको दिखते जाएगा अब साथ ही साथ। तो जैसे जैसे मैं अपनी पेन आगे बढ़ाती जाऊंगी, आपको ये हिस्सा इस पर मैप होता हुआ नजर आएगा। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, इस टुकड़े को ले लूँ और इसे मोड़ती जाऊँ अपने इस दूसरे वाले हिस्से पे, अपने इस लाइन के अलोंग, तो ये कुछ इस तरीके से मुड़ेगा। और हम देख सकते हैं कि इस लाइन के अलोंग हमारा ये वाला टुकड़ा दूसरे वाले टुकड़े पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। मैंने फ्री हैंड का इस्तेमाल करा था, इसलिए ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों टुकड़े एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे। और हम कह सकते हैं कि हमारी ये लाइन, ये इस सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और एक सर्कल में बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। अगर आप एक सर्कल में सेंटर से पास होती हुई कोई भी लाइन ले लें और उसके अलोंग अपने सर्कल को मोड़े, तो वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ही होगी। तो चलिए वापस चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो शुरू करते हैं अपने इस ट्रायंगल से। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के ठीक बीचों बीच एक लाइन ले लूं इस तरीके से, और अगर मैं इस लाइन के अलोंग अपने एक टुकड़े को मोड़ूं, मान लेते हैं हम ये वाला टुकड़ा मोड़ते हैं, तो मेरा ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे इस वाले हिस्से पे पूरी तरह बैठ जाएगा। लेकिन मेरा ये वाला जो हिस्सा है ये इस ट्रायंगल पे कुछ यहाँ पे आएगा। तो हमारा ये हिस्सा हमारे इस ट्रायंगल के बाकी पार्ट पे पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके ट्राई करें, अगर मैं कुछ ऐसी लाइन ले लूं, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। अगर हम यहाँ लाइन ले लेते हैं तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। यानी कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर कोई भी वर्टिकल लाइन तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हुई नहीं दिख रही है। तो अगर मैं कोई ऐसी लाइन ले लूं, तो क्या ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? तो हमारा ये वाला हिस्सा है ये इसके अलोंग तो आ जाएगा, लेकिन हमारा ये वाला जो हिस्सा है अगर हम इसे मोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे। और हम देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा फिट नहीं बैठ रहा है, ये एग्जैक्टली बराबर नहीं है हमारे इस दूसरे हिस्से के। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो ट्रायंगल है ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो अब अगर इस स्क्वायर की बात करी जाए, तो अगर मैं एक लाइन ले लेती हूँ इस तरीके से इसके बीचों बीच से गुजरते हुए, तो हम देख सकते हैं कि मेरा ये वाला जो टुकड़ा है ये ठीक ठीक इससे मैच कर जाएगा। हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये मुड़ेगा तो ये हमारे इस वाले साइड पे आएगा। अगर हम ये वाले टुकड़े को देखें तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा इस पे। यानी कि अगर हम इस लाइन के अलोंग अपने स्क्वायर को मोड़े तो हमारे दोनों हिस्से एक दूसरे पे बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे। यानी कि हमारा ये स्क्वायर ये दरअसल एक सिमेट्रिकल शेप है। और स्क्वायर में और भी ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, लेकिन एक लाइन ऑफ सिमेट्री काफी थी ये बताने के लिए कि ये शेप दरअसल सिमेट्रिकल है। तो अब बात करते हैं इस पेंटागन की। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बना लूं इस तरीके से, तो क्या ये इसके अलोंग सिमेट्रिकल है? और हम देख के ही कह सकते हैं कि ये लाइन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा शेप है इधर, और यहाँ पर हमारे पास है कुछ ऐसा शेप। ये दोनों एक दूसरे पे फिट होते हुए तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो अगर मैं एक लाइन ले लूँ कुछ इस तरीके से, तो क्या इसके अलोंग हमारा ये पेंटागन सिमेट्रिकल होगा? तो मेरा ये वाला जो हिस्सा है इस पेंटागन का ये ठीक ठीक बैठ जाना चाहिए इस पे। इसी तरीके से मेरा ये वाला टुकड़ा जो है ये ठीक बैठ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला टुकड़ा ये ठीक यहाँ पे बैठ जाना चाहिए। तो हमारा ये पेंटागन, इसमें भी कम से कम एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो है ही, इसलिए ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर है। और इस बात को विजुलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे अपना ये टूल ले आती हूँ। इससे मैं अपने इस लाइन के अलोंग रखूंगी और चलिए बनाना शुरू करते हैं अपने इन लाइंस को। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाली लाइन बना लूँ तो ये आ गई ठीक इस पे। अगर मैं ये वाला हिस्सा बनाती हूँ तो ये आ जाता है इस पे, और अगर हम ये वाला टुकड़ा बनाएं तो ये ठीक इस पे आ जा रहा है। हम देख सकते हैं कि हमारी ये वाली जो लाइन है, ये जो पीली वाली लाइन है बीचों बीच से गुजरती हुई, ये इस पेंटागन की लाइन ऑफ सिमेट्री है। और इसी तरह से इस पेंटागन में
ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर हम इस तरह से एक लाइन बना ले तो ये भी सिमेट्री का लाइन होना चाहिए। यहाँ पर ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हमारे इस पेंटागन में कुल 5 लाइंस हैं सिमेट्री की। तो यहाँ पर हमारा ये स्क्वायर और ये पेंटागन सिमेट्रिकल शेप्स हैं। White Hat's really good and I love Jim. हाँ जी, समझ आया? अच्छी लगी? बढ़िया लगी वीडियो दोनों? समझ भी आई कि कुछ नहीं? कितना इजी था, इसीलिए मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी थी ये वाली। मैंने कल देखी है, दूसरी वाली वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ जी मैम याद आ गई? चलो आप मैम हाँ जी बोलो। मजा आ गया। वेरी गुड। मैम हाँ मुझे पता था, मेरे को मुझे पता था तुम्हें मजा आएगा इसमें, इसलिए लगाई थी मैंने। मैम हम ये बोल रहे थे कि ना हमने इन दीदी की वीडियो ना पहले भी देखी हुई है, ये बहुत अच्छे से समझाती है। यस ये बहुत प्यारी लगी थी मुझे वीडियो, तो मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर करी। अब हम आगे हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी इसके ऊपर। मुझे अच्छी लगी थी ये वीडियो, मैंने कहा बच्चों को दिखाऊंगी, बहुत प्यारी वीडियो थी। बहुत मैम यस ये ना बहुत अच्छे समझाते हैं दीदी, बहुत अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया हुआ था इस वीडियो में। हर वीडियो में नहीं होता, कभी कभी नहीं होता वीडियो एक्सप्लेन। अब आप बट यू कम टू पेज नंबर, नाउ यू कम टू पेज नंबर 143। देखिए आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। जो मम्मा म्यूट योरसेल्फ। ए दिया हुआ है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनेगी? मिडल में। ये देखिए यहाँ पे मिडल में बनेगी। मैं थोड़ा सा फ्री हैंड बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा टेढ़ी आ सकती है। मम्मा और म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। कौन मम्मा को बुला रहा है? म्यूट। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसने दिया हुआ 3 की लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको ये सोचना होता है एक तरह से, आपको ये माइंड में सोचना होता है कि अगर हमें ये शेप दी हुई है तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बन सकती है। यू हैव बीन गिवन 3, तो आपको दिख रहा है लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी मिडल में आएगी। अगर आप ये पेपर पे भी करके देख सकते हो, आप सब चीज मोड़ के देखोगे आपको बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। सिमिलरली एच, उसने एक दिया हुआ एच, ये अल्फाबेट से भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। एच के लिए अगर आप बीच में बनाओगे, एक तो 2 बनेगी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, एक तो मिडल एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बनेंगी। देखिए एक इधर से बनेगी, ये दिस विल बी योर लाइन ऑफ सिमेट्री। और लाइन ऑफ सिमेट्री जब आप बनाते हैं ना डायग्राम में, स्केल लेके बनाया कीजिए, स्केल से बिल्कुल सुंदर सुंदर आती है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। नाउ सी, you can see in a rectangle there can be only 2 line of symmetry। एक रेक्टेंगल अगर आपको दिया हुआ है वहां पर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ आपकी 2 बनेगी। सपोज दिस इज योर रेक्टेंगल, एक तो ऐसे बनेगी और एक ऐसे बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी, एक वर्टिकल बनेगी। ठीक है। और सर्कल में बहुत सारे, जो भी सेंटर से लाइन ऑफ सिमेट्री निकलेगी दैट विल बी योर, जो भी लाइन निकलेगी दैट विल बी योर लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इनफिनिट बन जाती है, वहां पर कोई लिमिट नहीं है। सर्कल में बहुत सारी बन जाती है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री टुडे। सो वी विल बी नाउ टेकिंग द एक्सरसाइज पार्ट, exercise 9.1।